آپ نے نماز پڑھی، اودی مرضی وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ آپ نے زکوٰۃ دی، ہو سکتا ہے آپ نے زکوٰۃ اس لیے دی ہو کہ لوگ مجھے کہیں چودھری صاحب بڑے سخی ہیں اس لیے زکوٰۃ دی ہو سکتا ہے آپ نماز اس لیے پڑھنے آتے ہو کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، آپ نے حج اس لیے کیا ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہیں۔ تو جس نے اس لیے نماز پڑھی ہو کہ میں نمازی کہلاؤں تو وہ اس کو نمازی کہلوا دیتا ہے، نمازی کہلوا دیتا ہے۔ جو اس لیے حج کرے کہ کائنات دنیا مجھے حاجی کہے تو وہ اس کو حاجی بھی کہلوا دیتا ہے۔ کوئی اس لیے زکوٰۃ اور صدقات دے کہ دنیا مجھے سخی کہے تو وہ سخی بھی کہلوا دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ پھر اعلان کرتا ہے کہ بندے اب تیرا ادھر کوئی حصہ نہیں، اب تیرا ادھر کوئی حصہ نہیں۔ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تو ماتھے پہ نشان ڈال لیا تھا تجھے سجدے کر کر کے، میں نے تو ڈھیر لگا دیے تھے صدقات دے دے کے، میں نے تو حج کر 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 کے بے گنتگی میں حاجی سے الحاج ہو گیا تھا، تو باری تعالیٰ وہ میری عبادت، وہ میری زکوٰۃ، میری صدقات، میری نمازیں، میرے حج، میرے جہاد، وہ سب کچھ کہاں گیا؟ تو اللہ فرمائے گا اے بندے تو نے نماز اس لیے پڑھی کہ دنیا تجھے نمازی کہے تو میں نے تجھے کہلوا دیا نمازی۔ تو نے زکوٰۃ اس لیے دی، صدقہ اس لیے دیا، خیرات اس لیے کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو نے دیکھا نہیں تجھے نگر نگر گلی گلی لوگ سخی کہتے تھے، میں نے تجھے سخی کہلوا دیا۔ تو نے حج اس لیے کیے کہ لوگ تجھے حاجی صاحب کہیں، تیری رسپیکٹ ہو، تیرا نام لیں، تو بندے میں نے تجھے حاجی کہلوا دیا۔ تو باری تعالیٰ اجر فرمایا جو تو نے اجر مانگا تھا میں نے دے دیا، میں نے تجھے محروم تو نہیں رکھا، جو تیری طلب تھی وہ میں نے تجھے دے دی۔ اب قبول کروں یا نہ کروں وہ کر بھی سکتا ہے، انکار کوئی نہیں، وہ کر بھی سکتا ہے۔ یعنی ہر عبادت کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، ایک نظم ہے، ایک درجہ ہے اور ایک بدلہ ہے۔ پر یار کا جشن جو بندہ مناتا ہے، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، محبوب ان سے کہہ دیجئے جب نعمت دوں نا کیا کروں؟ بولو بولو کیا کروں؟ ابھی مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں نا میلاد کیوں مناتے ہو، نہیں منانا چاہیے۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے نعمت دے تجھے، اللہ بیٹا دے تو خوشی مناتا ہے، یار بلاتا ہے، رشتہ دار بلاتا ہے، ڈھول بجاتا ہے۔ کیوں جی کیا کر رہے ہو حضرت صاحب، کیوں اہتمام کیا ہے؟ کہتا ہے میرے گھر بیٹا ہوا ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، میں خوشی کر رہا ہوں۔ وہ جھلے آپ مصطفیٰ کی خوشی نہیں کرے گا تو بولو نا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نہیں کرے گا۔ اللہ فرما رہا ہے فَلْيَفْرَحُوا، جشن مناؤ۔ کیا کرو؟ خوشی نہیں مناؤ، خوشی چھوٹی ہے، خوشی چھوٹی ہے۔ خوشی تو ایک وقت میں بھی ختم ہو سکتی ہے، ایک اظہار سے بھی خوشی ختم ہو گئی، ایک گفتگو سے بھی خوشی ختم ہو گئی، ایک نجی محفل سے بھی خوشی ختم ہو گئی، آپس کی تعلقات سے بھی خوشی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں خوشی نہیں منانا، باری تعالیٰ کیا کروں؟ فرمایا ایسے جشن منا کہ لوگ تجھے میرے یار کا دیوانہ کہتے پھریں، لوگ تجھے دیوانہ کہتے پھریں، لوگ تجھے پاگل کہیں، لوگ تجھے مجنوں کہیں۔ ارے لوگوں جو مصطفیٰ کے لیے دیوانہ اور پاگل ہو گیا نا، قیامت میں اس جیسا دانائی کوئی نہیں ہوگا، قیامت میں اس جیسا دانائی کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایک پوسٹ لگی تھی نا، وہ کہتا ہے جی ہم میلاد نہیں مناتے تو ہم تو صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن۔ اور جلے اب میں اگلی بات بعد میں بتا دوں گا کہ صحابہ بھی میلاد مناتے تھے کہ نہیں۔ ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم میلاد کس کا مناتے ہیں؟ بولو بولو، سرکار کا۔ کس کا؟ سارے گاج واج کے دسو کس کا؟ ہم میلاد منا رہے ہیں سرکار کا۔ اور صحابی کیسے بنا؟ تو منا، تو کہتا ہے میں صحابہ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، ہم اختلافی لوگ نہیں ہیں، ہم کسی پہ تنقیدی بات کرتے ہی نہیں، ہم محبت کی خیرات لینے والے ہیں اور خیرات بانٹنے والے ہیں۔
بس آپ نے بات کی تو بات سے بات آ گئی تو میں عرض کر دیتا ہوں، اپنا عقیدہ پختہ کریں، جھگڑنا نہیں کسی سے، نہ کسی سے شکوہ کرنا ہے، ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں۔ وہ جو کہے نا تم میلاد کیوں مناتے ہو کہ تو کمی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا، تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا، تیرے دیکھنے کی نظر اپنی ہے، ہمارے دیکھنے کی تو جو تو نے دیکھا وہ تو رکھ لے، ہائے ہائے جو تو نے دیکھا وہ تو رکھ لے، جو ہم نے دیکھا وہ ہم رکھ لیتے ہیں۔ اور یہاں نا جھگڑا ہی سارا نہ دیکھنے اور دیکھنے کا ہے، ہائے 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 ہائے، یہاں جھگڑا ہی سارا نہ دیکھنے اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اس نے کہا جی میں صحابہ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، تو صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس نے ایمان کے ساتھ مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ایمان کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ تو صحابہ کے ساتھ کھڑا ہو جائیں، ہم مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ نہیں سمجھ آئی ہیں کہ بھائی جلے او میرے ویر تو جلا ہو گیا ہے، صحابہ بھی تو مصطفیٰ کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے نا یار، انہوں نے بھی تو سرکار کے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے نا، وہی تو ساری زندگی حضور کے پیچھے ہی دیوانے پھرتے رہے، تو صحابہ اور کون تھے؟ یہ جھگڑا نا نہ دیکھنے اور دیکھنے کا ہے، نہ دیکھنے اور بولے نہ دیکھنے اور۔ یوسف علیہ السلام تھے نا، میں موضوع شروع کر رہا ہوں بس میں آپ کو بات سمجھا دوں۔ یوسف علیہ السلام جب زلیخا دیوانی ہو گئی، قرآن میں واقعہ سارا آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ یوسف پڑھیں، کسی سے سنیں، ترجمہ پڑھیں۔ اب لوگوں نے نا تانا دیا، محلے کی عورتیں، توجہ کری میری طرف، محلے کی عورتیں تانا دیتی تھی، ہیں یوسف اے زلیخا جھلی ہو گئی ہیں، زر خرید غلام پہ عاشق ہو گئی، جس کو خود خرید کے لائی ہے، جس کے خود پیسے بھرے ہیں، وہ تیرا نوکر ہے، وہ تیرا غلام ہے، توجہ کری، اور تو غلام پہ عاشق ہو گئی ہے۔ میری طرف دیکھنا، زلیخا بدنام ہو گئی، گلی گلی، نگر نگر، گھر گھر، ہر بچہ، ہر عورت، ہر مرد، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر بندہ ایک ہی بات پہ تھا کہ زلیخا زر خرید غلام پہ عاشق ہو گئی ہے۔ بولی زلیخا زر خرید غلام پہ۔ اب جب بدنام ہو گئی نا زلیخا، ہر طرف تانے لگنے لگے، تان و تشنیع ہونے لگی، تو زلیخا نے نا کسی عاشق سے مشورہ کیا، مولوی سے نہیں کیا، کسی مولوی سے کرتی تو پنگے میں پڑ جاتی، عاشق سے مشورہ کیا، تو عاشق نے پتہ کیا جواب دیا؟ اب جملہ سنی تو مجھے پتہ چلے تجھے سمجھ آئی ہے۔ عاشق نے پتہ کیا کہا؟ عاشق نے کہا زلیخا انہوں نے دیکھا نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں، جو تو نے دیکھا ہے نا، اگر زبانیں بند کروانی ہے تو تھوڑا انہیں بھی دکھا دے، تھوڑا انہیں بھی دکھا دے۔ زلیخا نے دعوت کا اہتمام کیا، پھل لگائے، چھریاں پکڑا دی، رؤساء کی بیویوں کو بلایا، قرآن کہتا ہے بلا کے ان کو پھل پکڑا دیے، اور یوسف علیہ السلام کی منت کی، اے یوسف علیہ السلام بس صرف یہاں سے نا ایک بار گھونگٹ اٹھا کے گزر جا۔ یوسف ایک بار گھونگٹ اٹھا کے گزر جا۔ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی لاج رکھنے کے لیے گھونگٹ اٹھایا، جب وہاں سے گزرے، پھل کٹے، انگلیاں کٹی، چھریاں چل گئی، پورا خون نکل گیا، اور وہ جو بیٹھی تانے دے رہی تھی، جب دیکھ لیا تو تڑپ کے بولی ہائے ہائے زلیخا یہ تو انسان ہی نہیں ہے، ہاں شام یہ تو انسان نہیں، ارے یہ تو فرشتہ ہے، زلیخا یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اب کیا تھا؟ جب تک دیکھا نہیں تھا تو کیا کہتی تھی؟ آئے ہائے بولو یار، بولو بولو جو سمجھے ہوتے، جب تک دیکھا نہیں تھا تو تانے دیتی تھی، کہتی تھی عاشق ہو گئی ہے غلام پہ، جب دیکھ لیا تو اب انسان کی لسٹ سے ہی نکال دیا۔ ہائے ہائے ہائے، اب انسان کی، اب میں آپ کو اس کی تشبیہ میں اب حدیث سنا کے نتیجہ دینے لگا ہوں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ
मेरे आका मैंने सुना यूसुफ बड़े हंसी थे। सरकार ने फरमाया हाँ सहाबा, हाँ आयशा, यूसुफ बड़े हंसी थे। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने सुना यूसुफ इंतहा के हंसी थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम है वे इंतहा हंसी थे। आका मैंने सुना यूसुफ को देख के मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली थी। आय हाय हाय, यूसुफ को देख के मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली थी। मेरे आका ने फरमाया हाँ आयशा ऐसे ही हुआ था। पर फरमाया आयशा जी या रसूल अल्लाह, फरमाया मैं तुझे अपने हुस्न की एक झलक ना दिखाऊं? हाय हाय हाय, तुझे अपने हुस्न की एक झलक ना दिखाऊं? अर्ज की आका दिखाइए। मेरे आका ने यूं अपनी उंगली से हल्का सा नास हटाया, नूर की झलक पड़ी, आयशा बेहोश हो गई। हजरत सैयदा आयशा बेहोश हो गई। जब होश में आई ना तो सरकार ने पूछा, फरमाया आयशा क्या गुजरी? बोल यार आयशा क्या गुजरी? अर्ज की या रसूल अल्लाह, नूर की झलक ऐसी थी मैं ताब ही नहीं ला सकी। अब अगला जुमे सुनी, सरकार ने फरमाया आयशा सुन, अल्लाह ने मेरे नूर से नूर लिया, जन्नत को बनाया, मेरे नूर से नूर लिया, अर्श को बनाया, मेरे नूर से नूर लिया, कुर्सी को बनाया, मेरे नूर से नूर लिया, लौह को बनाया, मेरे नूर से नूर लिया, फलक को बनाया, मेरे नूर से नूर लिया, तख्ती को बनाया, कलम को बनाया। आयशा अल्लाह ने मेरे नूर से नूर लेकर सारी कायनात बनाई। आयशा मेरे नूर के 21वें हिस्से से रब ने यूसुफ को बनाया था। हाय हाय हाय, मेरे नूर के, बोलना यार, मेरे नूर के कितने हिस्से से? आए बोल जरा एक बारी, कितने हिस्से तू? ते जे 21वें जिंदे कोल 21 आन नहीं समझेगा हर तुसी ओ हेक लेके हुन चल तन पंजाबी समझाने की कोशिश करदा है। और मतलब इससे यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान कम नहीं मैं कर रहा, माअज़ल्लाह वो अल्लाह के बड़े शान वाले नबी हैं। आपको बात समझा रहा हूं। ओ हेक लेके ते इंज वदा है भाई कायनात हाथ कट्टी बैठी है। आय हाय हाय, कायनात हाथ कट्टी बैठी है ते जेड़ा 21 लई वदाई ओ देते ओ आशिक क्यों ना हुंदा? हाय 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 हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं ये देखने और ना देखने के झगड़े हैं और कोई झगड़ा नहीं। देखने और लड़ा ना करें। कोई आपको कहे ना मिलाद क्यों मनाते हैं, उन्हें कहें कोई गल नहीं सोने, जो तैनू समझ आउंदी है तू मना, जो सानू आउंदी है उसी मना। हाँ तेरा अपना वतीरा हमारा अपना वतीरा। और उसे ये भी कह देना, अब आखिरी जुमला सुन ले, मेरी बात लंबी निकल जाएगी, मैंने अभी मौजू शुरू करना है। उसे ये भी कह देना, तवज्जो करी, उसे ये भी कह देना तू अपने ते मना, हम अपने राह पे। पर जब कब्र में जाएंगे ना, कब्र विच फर्क पै जाना है खासां दा ते आमां दा। आए कफन मैला नहीं होना मोहम्मद दे गुलामां दा। फिर वहां पे फर्क हो जाएगा, वहां सवालों जवाब होंगे। इमाम राजी इतने बड़े इमाम थे, 360 दलीलें याद कर रखी थी कि शैतान आके मुझे दलील देगा, जब मरने लगूंगा कि रब नहीं है तो मैं दलील से दलील दे के रद्द करूंगा। एक दिन आके गौसुल आजम का मुरीद हो गया, जब आप पे बैठ तो बड़ा कहने लगा हाय हाय ये क्या कर दिया, मैं इतना बड़ा आलिम हो के एक फकीर के हाथ में हाथ दे आया। राजी की करीबुल मर्ग आ गए, मौत वाक़ई होने लगी, शैतान ने हमला कर दिया। उसने कहा, शैतान ने कहा अल्लाह नहीं है, आपने दलील दी अल्लाह है, उसने दूसरी से रद्द की, उसने तीसरी से रद्द की, उसने चौथी से रद्द की, हत्ता के राजी की 360 दलीलें खत्म हो गई। 360 दलीलें खत्म हो गई। करीब था कि शैतान का हमला गालिब हो जाता। मुर्शिद ने चुल्लू पकड़ा, पकड़ के फेंक के फरमाया राजी इसे कहे मैं मोहम्मद के रब को बगैर दलील के मानता हूं। हाय हाय हाय, मैं मोहम्मद के रब को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई जो आपको ये कहे ना कि मैं मिलाद, उसे कहो तेरा अपना वतीरा हमारा। तू जब कब्र में जाएगा तो वो पूछेंगे मन रब्बों का, तू किताब लगी, वो पूछेगा मन दीनों का, तू किताब लगी। जब अगला सवाल होगा ना मा कुंता तकूलो फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मोहम्मद, सामने रुखे मुस्तफा होगा, जो जिसने आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाए होंगे, मुस्तफा के जश्न
के वास्ते। मुझे क्या जरूरत है, ना झगड़ा करो, ना झगड़ा करो। कोई कह दे कि मिलाद क्यों मनाते हो, खामोश हो के। आपका काम यही है कि आप गज वज के जश्न मनाएं। सरकार, आप सरकार का, सलीम साहब वेलकम, गज वज के सरकार का बोलो, गज वज के सरकार का। मेरे शेख फरमाया करते हैं, मेरे शेख फरमाते हैं, बेटा 11 महीने होश में रहो। कितने महीने, तवज्जो करें, 11 महीने होश में रहो। जब 12वां महीना और 12 रबीउल अव्वल आए ना, तो होश खो दिया करो। आय हाय हाय, होश है। फिर आप जैसे हो सकता है ना, जितना हो सकता है, दीवाना वार मुस्तफा का जश्न मनाया करें। सरकार का मलंग बन जाया करें। सरकार के नगर नगर, गली गली ऐसे दीवाने हुआ करें। मैंने आपको अर्ज किया था, शुरू में बात की है कि इबादत हर की अजर है और हर इबादत की कबूलियत की भी शर्त है। हाय हाय, कबूलियत की भी। जब आप निकलते हैं बाजार में, आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन, मतलब आप अंदाजा किसी और जुबान से कह देते हैं या नबी सलाम अलैका। आप सलाम पढ़ते हैं ना, दरूद पढ़ते हैं हुजूर की बारगाह पे। अब आप एक बार दरूद पढ़ें, कहें अल्लाहुम्मा सल्ले अला, पहले ही लफ्ज पे ठहर जाएं। आपने क्या कहा, अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे रब। तवज्जो करना, अब मैं बता रहा हूं, नमाज कबूल हो ना हो शर्त है, रोजा कबूल हो ना हो क्या है, ज़कात कबूल हो ना हो शर्त है। पर दरूद और जश्न ऐसी इबादत है जो रद्द हो ही नहीं सकती, जो रद्द है। आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला। अब मैं आपको इसका तर्जुमा बताने लगा हूं क्यों रद्द नहीं होती। आपने कहा अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे सल्ले अला, तू सलाम भेज, तू सलाम भेज। किस पर, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू सलाम है। हुण जुमला देने लगा तो समझ के बोलनी, मुझे पता लगे तुझे समझ आई है। अब तू कह दरूद रद्द क्यों नहीं हुआ, तू कह मैं तो पढ़िया ही नहीं, मैं तो पढ़िया ही नहीं, तो क्यों नहीं कबूल रद्द होया। आदा मैं तो उन्होंने सिफारिश की है, तू पढ़। हाय हाय हाय, तू पढ़। ते ओ तो हमेशा आदा है कि मैं ते मेरे फरिश्ते काम ही जो करे ने, सान ते होर काम ही कोई नहीं, सानू ते होर। बहरहाल तमहीद लंबी हो गई है, तो बात यही खत्म करता हूं कि ये देखने और ना देखने के झगड़े हैं। देखने और ना देखने के, जिन्होंने देखा है वो जश्न मनाते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो चुप रहते हैं। तुम भी चुप रहा करो, तुम जश्न मनाओ बस, किसी पे तनकीद ना करो। मैंने आपके सामने आया मुबारका पढ़ने की का शर्फ हासिल किया। सरकार दो आलम सल्लम की शान में रब्बे कायनात ने आयत नाजिल फरमाई, फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। ए लोगो, अब तवज्जो करनी है, सिर्फ 2-4 बातें टेक्निकल समझा के आगे बात आसान हो जाएगी। फरमाया है लोगो, मैंने तुम ही में से तुम्हारी तरफ रसूल भेजा, तुम ही में से तुम्हारी तरफ रसूल भेजा। आप हमेशा पढ़ते आए हैं, हम भी पढ़ते आए हैं, और पढ़ना ऐसे ही है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अब एक किरात शाज़ला से इस आया मुबारका को एक दूसरे एराब से भी पढ़ा गया है, और वो क्या है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सैयदा कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला अली करमुल्लाह वजहो, इन तीनों घर वालों से रिवायत है, इन तीनों घर वालों से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि कभी कभी हम इस आयत को यूं भी पढ़ा करते थे, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। पहले फे पे पेश थी, अब फे पे क्या हो गई, जबर, क्या हो गई। इस किरात को आप तिलावत नहीं कर सकते, लेकिन तफसीर इसकी बयान कर सकते हैं। अब लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम क्यों कहा, आज यही हमारा मौजू है कि अनफुसिकुम से अनफुसिकुम क्यों कहा। अब फरमाया सुनिए, अनफस नफीस को कहते हैं, नफीस से है, किससे है, बोले बोले किससे है, नफीस कहते हैं जो बड़ा मुनज़्ज़ा हो, बड़ा पाक हो, बड़ा उजला हो,
और बड़ा कीमती हो, बड़ा कीमती हो। अब जैसे आप कहते हैं ना, जब नफीस कहा और नफीस इतना ज्यादा नफीस हो ना कि उसकी नफासत जहां पे नफासतों की हद खत्म हो जाए, वहां से आगे उसकी नफासत शुरू हो, उसको अनफस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अनफस। मसलन कोई हाफिज हो ना, हाफिज, कोई बड़ा चोटी का हाफिज हो, जिसका हाफजा दुनिया के हाफजे जहां रुक जाएं, उससे आगे उसका हाफजा चले, तो उसको कहते हैं अहफज। क्या कहते हैं? जुमले थोड़े औखन पर याद कर लो, फिर गल आसान हो जाएगी। क्या कहते हैं उसको? अहफज। आदिल, अदल करने वाले को कहते हैं, इंसाफ करने वाले को। जिसका अदल इतना कमाल का हो कि जहां पे अदल खत्म हो जाए ना, वहां से उसके अदल की इब्तदा हो, उसको कहते हैं अदल। क्या कहते हैं? अदल। खैर में मिसालें बहुत हैं, इतनी बात समझ लें। अब जब नफीस से अनफस कहा ना, तो फरमाया लक़द जाअकुम रसूल मिन अनफसिकुम। फरमाया लोगों, रब्बे कायनात फरमा रहा है कि जब मैंने सारी नफासतें जमा की, जब मैंने सारी पाकीज़गियां जमा की, जब मैंने सारी मुन्नासियत जमा की, मैंने जब सारी पाकीज़गी जमा की, जब मैंने सारी तहारत जमा की, और सारी नफासतें और सारी तहारतें जहां खत्म हो गई, वहां से मैंने मुस्तफा की इब्तिदा की और उसको कहा अनफसकुम। तो फरमाया मैंने वो सारी नफासतें जहां एंड हो गई, वहां से एक नफीस पैदा किया। हाय हाय हाय, बोलो बोलो, वहां से मैंने एक नफीस पैदा किया, और नफीस भी ऐसा बनाया कि अब कयामत तक उस जैसा नफीस कोई नहीं होगा। हाय 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 हाय, बोली, उस जैसा नफीस कोई नहीं होगा। इसलिए तो मैंने उसे अनफस कर दिया कि महबूब न वो नफासत जन्नत में किसी के पास होगी, महबूब वो नफासत न अर्श पे किसी के पास होगी, न फर्श पे किसी के पास होगी, न जन्नत में होगी, न मलक में होगी, न फरिश्तों में होगी, न अंबिया में होगी, न सुलहा में होगी, न सिद्दीकीन में होगी। सोनिया या नफीस बड़ा मैं ते या फिर तू, तीजा कोई नहीं, क्योंकि रब तो रब है ना, रब से तो बड़ी कोई शय नहीं ना। हुजूर अल्लाह की मखलूक है ना, इससे तो हमें इनकार कोई नहीं। लेकिन वो फिर भी क्या कह रहा है? महबूबा, ये जो मैंने तुझे नफासत की इंतहा दी है ना, ये जो मैंने तुझे नफासत की इंतहा दी है, फरमाया महबूबा या इस तो बड़ी कायनात च मैं जाता हूं या फिर तू जात है। तीसरा, इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, तवज्जो कीजिएगा, कि ये अनफुसिकुम को अनफस क्यों पढ़ा, अनफासिकुम क्यों पढ़ा? तवज्जो करना, अब ये बात बड़ी अहम है। आपने बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया लोगों, जो बंदा है ना, बशर, आप, मैं, आदम की जो औलाद है, फरमाया ये था भारी से मुराद गुनाहगार था, बशर था, गुनाहों का पुतला था, ये इस मकाम का नहीं था। तवज्जो करी, बड़ा बड़ा जुमला है। ये इस मकाम का नहीं था कि डायरेक्ट रब से कलाम कर सकता, डायरेक्ट रब से कलाम कर सकता। और उसने भी ऐलान कर रखा है कि मैं किसी बशर से गुफ्तगू नहीं करता, मैं किसी बशर से गुफ्तगू नहीं करता। फरमाया लेकिन जरूरी था, वो खालिक है, ये मखलूक है, वो खालिक है और ये, बोले बोले, वो खालिक और ये मखलूक है। रब्त जरूरी था, रब्त जरूरी था। अब आप ये सवाल कर सकते हैं यहाँ पे कि रब्त के लिए पैगाम लाता था जिब्राइल था ना। मैं अब आपको कोई और बात समझाने लगा, सवाल इसलिए कर दिया कि आपके ज़हन में न रहे। अब तवज्जो करें, फरमाया बारी ताला ने, हजरत जाफर सादिक ने, कि रब और मखलूक में ताल्लुक, राबता, ताल्लुक पुख्ता करना था। अब फरमाया वो कैसा ताल्लुक था? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी आए, हर नबी उसका पैगाम देता रहा, हर नबी उसका पैगाम देता रहा। हर नबी ने उस रब्बे कायनात की वही अवाम तक पहुंचाई, अहकामात अवाम तक पहुंचाए, शरीयतें पहुंचाई।
हर नबी आता गया, बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं ढंग वालों, वो नबी आता गया, पैगाम सब देते थे। सलीम साहब कदर करना जुमले दी, पैगाम सब देते थे, तस्वीर कोई नहीं था। हाय 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 हाय, तस्वीर कोई नहीं था। एक नबी के पास चल के गए, जेड़े रब दी तू तबलीग करना है, है क्यों जिया, उन्हें क्या टूरो तुम भी खाई ना जा, मिन्नत करना, तुसी भी करो मैं भी करना। हाय हाय हाय, चलो तुम भी मिन्नत करो, मैं भी, बोलो बोलो, मैं भी मिन्नत करता हूं, तुझे दिखाता हूं, तुम भी देख लेना, मैं भी, बोलो यार, मैं भी देख लूंगा। बारी ताला तवज्जो करे, उसने भी जाकर पहाड़ पे खड़े होकर मिन्नत की, सोना रब्बा, रब्बे अरनी, मुझे अपना आप दिखा, अंजुर इलैक, तुझे देखना चाहता हूं। उसने कहा लन तरानी, मैं किसी को नहीं दिखाता अपना, मैं अपना आप किसी को नहीं दिखाता। फिर तरला पाया, कौम नहीं मानती, कौम के लिए दिखा, तो फरमाया आए मूसा, तुझे मैं कैसे दिखा दूं, तू मुझे नहीं देख सकता, तो बारी ताला क्या करेगा फिर? फरमाया अच्छा तेरी तस्कीन कल्ब के लिए पहाड़ी पे तजल्ली डालता हूं, जितना कोई देख सकेगा देख लेगा, जितना कोई देख सकेगा, बोलो देख सकेगा देख लेगा। तो सैयदना जाफर सादिक ने फरमाया अनफस इसलिए कहा कि आदम से ईसा तक हर कोई उसका पैगाम लाता था, आदम से ईसा तक हर कोई उसकी शरीयत लाता था, आदम से ईसा तक हर कोई उसकी बातें लाता था, हर कोई उसके पैगाम देता था, उसके हुक्म देता था, उसकी शरीयत बताता था, उसके फरिश्ते बताता था, उसकी जन्नत बताता था, उसकी जहन्नम बताता था। पर अनफस को इसलिए बेटा कि हुण तक जिन्हें सुने आज तू बाद वेख भी लवो। फरमाया आज तक जिन्ना सुने आई आजो, बोल यार, ओ सुना सब ने था कि वो रहमान है, सुना सब ने था वो रहमान है, पर जब रहमानियत दिखाने का वक्त आया, जब मुश्किल आई, हर नबी की अपनी शान है, पर बात अर्ज कर रहा हूं, जब मुश्किल आई हर नबी ने दुआ कर दी, बारी ताला हुण साथों नहीं संभल दे, हाय हाय हाय, हुण साथों नहीं संभलते। रहमानियत का वस्फ साइड पे रह गया, करीमी का वस्फ साइड पे रह गया। अब जब इंतहा आ गई, लोगों ने पत्थर मारे, पांव लहू लुहान कर दिए, मुस्तफा को घर से बेघर कर दिया। अब पहाड़ का फरिश्ता आया, हवा का फरिश्ता आया, पानी का फरिश्ता आया, मुस्तफा तवज्जो करी, इजाजत दें पहाड़ उठाकर ताइफ वालों पे फेंक दूं, इन्होंने आपकी गुस्ताखी की है। उसने कहा नहीं नहीं, पहाड़ नहीं फेंकना। बार क्यों या रसूल अल्लाह, इन्होंने जुल्म जो किया है, हर नबी पे जुल्म होता था, वो दुआ कर देता था, फरमाया वो अजाब दे देता था, वो हर अमल करता था, आप क्यों नहीं कहते? फरमाया इसलिए, अब जुमला सुनी, मैं इसलिए नहीं कहता, वो नबी बन के आए थे, मैं रहमान की तस्वीर बन के आया। हाय हाय हाय, मैं रहमान की तस्वीर बन के आया हूं। तस्वीर के लिए जरूरी होता है कि अक्स दे, तस्वीर के लिए जरूरी होता है कि अक्स दे, अक्स ही तस्वीर का नाम है। आप मेरी फोटो खींच लें, अगर आपको मेरी शक्ल ही नजर नहीं आ रही, रब शक्ल जिस्म से पाक है, अल्लाह दा वास्ता सवेरे फतवा ना ला देना है। आपको अगर मेरी शक्ल ही नजर नहीं आ रही, तो उसे कोई तस्वीर कहेगा? बोलो ना, उसे कोई तस्वीर है? तस्वीर के लिए जरूरी है कि मेरे अज़ाब को नजर आए, हाय हाय, मेरा मुस्कुराना नजर आए, मेरी आंखें नजर आए, मेरे हाथ नजर आए, मेरे गाल नजर आए, मेरा सर नजर आए, मेरी कदो कामत नजर आए, मेरा जिस्म नजर आए। अब जब आप मेरी शक्ल देखेंगे, मेरा मुस्कुराना देखेंगे, मेरी आंखें देखेंगे, मेरे अबरू देखेंगे, मेरी पलकें देखेंगे, मेरी कदो कामत देखेंगे, तो आप फैसला करेंगे कि बंदा कैसी वजाहत का है, बंदा कैसी शख्सियत है, इसकी कैसी वजाहत है। तो तवज्जो करी, तवज्जो, अब मैं जुमला देने लगा हूं, अल्लाह इस जुमले से पाक है, आपको समझाने के लिए। उसने कहा अनफस बना के बेटा कायनात की नफासतें खत्म कर दी, कायनात की नफासतें खत्म कर दी। मैंने अपनी नफासत का
جس کو مزار بنایا ہے آج اگر پہاڑ اٹھا کے پھینکوا دے گا تو میری رحمانیت کا عکس نہیں رہے گا، میری رحمانیت کا عکس نہیں رہے گا۔ تو فرمایا لوگو یہ رحمان کا عکس بن کے ہی تو آیا، رحمان کا عکس بن کے ہی تو آیا ہے۔ تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا یہ جو انفس بھیجا ہے نا۔ اچھا اگلا سوال کیا کہ باری تعالیٰ یہ جو تو نے انفس بنا کے بھیجا ہے، اب مجھے یہ تو بتا کہ اس کی نفاست ہم ماپیں گے کیسے؟ تھک پائے ہو؟ بس کریں ہیں؟ اس کی نفاست ہم ماپیں گے کیسے؟ تو نے تو کہہ دیا بے انتہا نفیس ہے، تو کتنا نفیس ہے؟ اس نے کہا میں بتاتا ہوں، پہلے اعلان کرو کہ مجھے رب مانتے ہو؟ مجھے رب بولو اللہ، نہیں ایڈا نہیں، ذرا گاج بج کے اللہ، کیا اللہ؟ اس نے کہا پہلے اعلان کرو مجھے رب مانتے ہو؟ باری تعالیٰ مانتے ہیں۔ پھر یہ بھی اعلان کرو کہ میرے علم کی کوئی وسعت نہیں، میرے علم کی کوئی وسعت نہیں۔ باری تعالیٰ مان گئے۔ پھر اس نے کہا یہ بھی اعلان کرو میرے حسن کی کوئی وسعت نہیں، میرے حسن کی کوئی وسعت نہیں۔ کہا اچھا باری تعالیٰ مان گئے۔ فرمایا پھر یہ بھی اعلان کرو کہ میری حکمت کی بھی کوئی وسعت نہیں، میری حکمت کی بھی کوئی وسعت نہیں۔ فرمایا پھر یہ بھی اعلان کرو میرے کمالات کی بھی کوئی وسعت نہیں۔ بولو بولو میرے کمالات کی بھی۔ کر دیا اعلان باری تعالیٰ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تیرے جیسا کوئی تھا نہ کوئی تیرے جیسا ہوگا۔ باری تعالیٰ اعلان کر دیا۔ اس نے کہا آپ پھر سمجھ میں تجھے انفس بتاتا ہوں، میں تجھے انفس بتاتا ہوں۔ باری تعالیٰ وہ کیسے؟ توجہ کری۔ اس نے کہا لقد جاءکم، آیا رسول منکم، تم میں سے، پر بھیجا تو میں نے ہے نا، بھیجا تو میں نے ہے۔ تو توجہ کری۔ اس نے کہا لوگوں یہ جو انفسیت عطا کی، فرمایا جب میرے علم کی کوئی حدت نہیں، میرے علم کی کوئی حد نہیں، میری حکمت کی کوئی حد نہیں، میرے کمال کی کوئی حد نہیں، میرے ذات کی کوئی حد نہیں، میری صفات کی کوئی حد نہیں، میری کریمی کی کوئی حد نہیں، میری رحیمی کی کوئی حد نہیں۔ فرمایا لوگوں سنو، جہاں ساری حد اختتام کو پہنچی تھی اس حد سے آگے میں نے اس نفاست کی ابتدا کی، اس حد سے آگے میں نے اس نفاست کی ابتدا کی تھی۔ اور فرمایا ابتدا بھی ایسی کی، ابتدا بھی ایسی کی کہ اپنی ساری ذات کو اکٹھا کر کے نا مصطفیٰ بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے رب کو، رب کائنات نے فرمایا اب میری ذات، امام جعفر صادق کا وہ جملہ یاد کرے، فرمایا اب میری ذات کوئی نہیں دیکھ سکتا، میری ذات کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میں کتنا بڑا رحمان ہوں سنا تو تم نے ہے، پر اتنی طاقت نہیں کہ میری رحمانیت کی حد دیکھ لو، اتنی طاقت نہیں۔ تو باری تعالیٰ ادھر تو ترلا پایا تھا، دیکھا کسی نے نہیں سکا، اب تو کہتا ہے میری تصویر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری تصویر مصطفیٰ ہے۔ تو باری تعالیٰ اس کا کوئی ثبوت؟ فرمایا سیدھا سیدھا ثبوت ہے، توجہ کری۔ کیا؟ فرمایا ادھر مانگا تھا، تجلی پڑی، وہ بھی تم نے سن لیا، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ سونی بولی بولی، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ پر فرمایا ادھر بھی دیکھ، جب میں نے بلایا سمدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، فرمایا جب میں نے یار کو بلایا میں نے کہا سونیا آج بشریت اقصا سے پیچھے چھوڑاؤ، محبوب آج نورانیت سدرا سے پیچھے چھوڑاؤ، محبوب آج کمال لاہوت سے پیچھے چھوڑاؤ، آج جمال لاسود سے پیچھے چھوڑاؤ، آج محبوب آج بشریت کی حد محبوبہ آج لامکان سے پیچھے چھوڑاؤ۔ باری تعالیٰ تو کدھر بلا رہا ہے؟ اس نے کہا ادھر بلا رہا ہوں جدھر نہ مکان ہے نہ لامکان ہے، جہاں نہ عرش ہے نہ کرسی ہے، نہ لوح ہے نہ فلک ہے، نہ جنت ہے نہ ملک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک وہ ہوگا ایک میں ہوں گا، ساری شان پیچھے چھوڑا، آج حقیقت میں میرے سامنے
बैठ जा। आज मेराज किसको करवाएंगे? हुजूर की बशरियत अक्सा से पीछे रह गई, हुजूर की नूरानियत जहां नूर रुक गया, जिब्राइल रुक गए, सिदरा से पीछे रह गई, तो आप कहेंगे फिर मेराज किसको हुआ? मोहम्मद की हकीकत को मेराज हुआ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफा की हकीकत को मेराज हुआ। आप कहेंगे वो हकीकत क्या है? हाँ हाँ हाँ, हकीकत है वो, यही हकीकत तो है, तुसा होर डिठा उन्ना होर डिठा। हाय हाय हाय, ये हकीकत था वो। मैंने पता नहीं आपको पहले कभी बात डिस्कस हुई है कि नहीं, मेरे ज़हन में आ गई, आपको बता देता हूँ। बड़ा खूबसूरत वाक़या, ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके मुरीद की बेटी आई ना, आपसे मिलने आई, शादी हुई, आपने मुरीद ने कहा जा पुत्र पीर साहब नू मिल ला, ते साइयां दे अगों बहु नहीं बुलिंदा, साइयां दे अगों बहुता नहीं बुलिंदा, जितनी गल पुछण ना उन्नी दा जवाब देवी। आदि अच्छा अब्बा, आ गए ख्वाजा साहब नू सलाम कीता, ख्वाजा साहब पूछया पुत्र तेरा क्या हाल है? आदि सोना ठीक हाँ। ख्वाजा साहब आदि सोना तुहाडा क्या हाल है? मैं तुझे ना एक वाक़े से हकीकत मोहम्मद सिखाने लगा हूं, जरा तवज्जो करी कि क्यों झगड़ते हो। उन्ना होर दिठा आसा और दिठा, गल ही खत्म। अब फरमाया ख्वाजा साहब ने, अच्छा पुत्र तेरे प्यो दा क्या हाल है? आदि सोना मेरे वाले साहब ठीक हैं। ते आदि ख्वाजा साहब फरमाया जी पुत्र, आदि तुहाडे प्यो दा क्या हाल है? आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह साडे वाले साहब भी ठीक हैं। थोड़ी देर बाद ना ते जदों थोड़ी देर गुजरी ते आपने फरमाया पुत्र तेरी शादी खैर नाल हो गई, मतलब तेरी शादी खैर नाल थी गई है, शादी खैर नाल हो गई। आदि सोना मेरी शादी खैर नाल थी गई है। तो थोड़ी देर गुजरी ना, आदि ख्वाजा साहब फरमाया जी पुत्र, आदि तुहाडी शादी खैर नाल थी गई? तुहाडी शादी जांगा ले हो, तड़प के सुनना, मैं बड़ा जुमला देने लगा हूँ। तुहाडी शादी खैर नाल थी गई है? फरमाया हाँ खैर नाल थी गई है। ते आपने फरमाया ना थोड़ी देर गुजरी, आपने फरमाया वो पुत्र तेरे घोट दा क्या हाल है? हाय 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 हाय, तेरे दूल्हे दा क्या हाल है? घोट हाल है दूल्हे को कि तेरे दूल्हे दा क्या हाल है? आदि सोना मेरा घोट ठीक है, हाय हाय मेरा घोट है ठीक है। ते कर्मा आली आदि सोना, हाय हाय हाय। आदि ख्वाजा साहब फरमाया जी पुत्र तुहाडे घोट दा क्या हाल है? हाय हाय, तुहाडे घोट दा क्या हाल है? तुहाडे घोट दा क्या हाल है? आपने फरमाया अल्लाह दा शुक्र है साडा घोट भी ठीक है। ते ख्वाजा साहब आख्या पुत्र जी सोना ओ कदा अपना घोट दिखाया? हाय हाय हाय, कभी वो दूल्हा दिखाती? आदि अच्छा सोना कभी हम इधर आए ना तो मैं अपने दूल्हे को आपके पास लेके आऊंगी। ते बागा अली पता क्या दी हुन सुनी दिल नाल सुनी यारा, हाय 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 हाय। आदि ख्वाजा साहब फरमाया जी पुत्र, आदि कदाई तुसां भी अपना घोट दिखाओ, हाय हाय हाय, कदाई तुसां भी अपना घोट दिखावा। इतनी बात जो की ना, मैंने कहा था ना ये ना देखने के झगड़े हैं। जब इतनी बात की तो ख्वाजा साहब बजट में आ गए, आप तड़प के बोले, आपने फरमाया पुत्र ओ मेरा घोट देखना ही, हाय 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 मेरा घोट देखना ही। आदि सोना देखना है। आपने यूं हाथ किया कोट मिठन से मदीने तक, पर्दे हट गए, फरमाया देख और बता मेरा डोला केड़ा छोड़ा है। तारा में मेरा घोट देख के बता, हाय 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 हाय। और पूछया सोना केड़ा नफीस बनाया, हाय 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 हाय। ते आखे कद काठ सोना ते मंतर बनावट, खत्म हो गई सारी सोने ते सजावट। और किसे कर्मा वाली ए मां ने नहीं जणिया जेड़ा अपनी मर्जी मुताबिक है बनया। रब पूछया मुस्तफा बता तेरे होठ कैसे बनाऊं, महबूब तेरे रुखसार कैसे बनाऊं, सोना तेरी जुल्फे कैसी बनाऊं, सोनिया तेरी आंखें कैसी बनाऊं, महबूबा तेरे अबरू कैसे बनाऊं, यारा तेरी कदों कामत कैसी बनाऊं, यारा तेरा रंग कैसा हो, यार तेरी चाल कैसी हो, हबीबा तेरी ढाल कैसी हो,
हाय 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 हुस्ने मुस्तफा, जिंदा। हुस्ने मुस्तफा। अब आप ये कहेंगे, कह देते कोई दलील, ये भी कहेंगे इस पे कोई दलील देता हूं। हदीसों में से हदीस की एक ये भी किस्म है कि जो अमल हुजूर के सामने हुआ हो और मेरे आका खामोश रहे हो, वो भी हदीस है। वो भी क्या है? उलमा मौजूद हैं, वो भी। हुण मैं तो दसना कि सरकार ने तस्दीक की थी कि नहीं कि रब पुछ के बनाया। हाय हाय हाय, रब पुछ के बनाया। हसन बिन साबित को सरकार ने मिंबर पे बिठाया, मुस्तफा सामने बैठे। हाय हाय, मेरे सरकार है सामने बैठे, हसन नात पढ़ रहे, अहसनु मिन कलम तरकत तो आईनी। हाय हाय, क्या मंजर होगा। हुजूर की आंखें देखते होंगे हजरत हसन, और आंखें देख के कह रहे होंगे वह अहसनु मिन कलम तरकत तो आईनी। आदा सोनिया, एडा सोना ते मेरी अख वेखे ही कोई नहीं। हाय हाय हाय, एडा सोना ते मेरी अख वेखे ही कोई नहीं। वह अजमलो मिन कलम ताली दिन निसाओ। अब मैं उसका तर्जमा अपने ज़ौक़ में यूं करता हूं। आपने फरमाया सोना ए अख किदू वे दी, किसे मां जमे ही कोई नहीं। हाय हाय हाय, किसे मां जमे ही कोई नहीं, कहां से देखती। अब अगली बात का जवाब देने लगा हूं। अब सरकार ने आगे फरमाया व अजमलु मिन कलम ताली दिन निसाओ खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्li ऐबिन। अनफस का तर्जमा भी हसन ने कर दिया। हाय 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 हाय, अनफस का तर्जमा भी हजरत हसन ने कर दिया। खुलिकता मुबर्रम, कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी नफासत कायनात की नफासतों से भी बढ़कर है, कोई एहसान खुल्क वाला नहीं है। फरमाया खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्li ऐबिन। अब अगला जुमला सुनी, फरमाया सोनिया का अन्ना का। उलमा मौजूद हैं। अब ये जो लफ्ज है ना का अन्ना का, तर्जमा जरा मजा लेके सुनी। फरमाया का अन्ना का, मैनू ता इंज लगदा है, चुप रहना चाहिए। का अन्ना का, मुझे तो यूं लगता है। कद तहकीक, कद लगा दी, तहकीक। कद कसम का भी माना देता है, और कहा अल्लाह की कसम, कद खुलिकता कमा तशाओ। हाय 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 हाय, कहते सोनिया मैनू ता इंज लगदा है, ता अन्ना का मैनू ते इंज लगदा है, कद खुलिकता कमा तशाओ। सोनिया मैनू ता इंज लगदा है, यू कसम है मैनू इंज लगदा है, यू रब तैनू पुछ के बनाया। हाय 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 हाय, अगर तुसी कसम दा माना लवो ना ते कोई इंज आदा भी मैनू इंज लगदा है, कसम है नहीं। उस आख्या मैनू ता इंज लगदा है, मोड़ा दा कद आदा नहीं मैनू इंज लगदा है। हाय 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 हाय, मैनू हुण इस तो सादा जुमले मेरे को कोई नहीं समझाण दे हैं, मैनू इंज लगदा है। ते सोने की कीता, सरकार ने फरमाया ये नहीं कहा, ना ना आसान क्या कह दिया, मैं मखलूक हूं, ऐसा ना कह, ऐसा ना कह। सोने की कीता, सोने चादर लाई। हाय हाय हाय, उवा चादर लाई जिन्नू वेख के आदा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले, ए मेरे हबीब। फरमाया महबूब ने चादर उतारी, हसन को दे दी। हाय हाय हाय, हसन को दी ते दसिया की जब चादर दे दी तो मोहर लगा दी कि लोगो सच्चा दाई ने। हाय 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 हाय, लोगो सच्चा दाई ने ए जो प्यादा है, ना मेरे वर्गा कोई इस वेख्या, ना कायनात वेख्या, ना मेरी वर्गा किसे मां जमिया, ना कायनात जमिया। फरमाया ना मेरे वर्गा कोई आया नाम सी। फरमाया मैनू पुछ के रब ने बनाया, लोगों आसान सच्चा दाई ने। हाय 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 हाय, आसान है सच आखदा ही ने। तो फरमाया लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, फरमाया लोगों ये जो तुम्हारे दरमियान मैंने भेजा है ना, ये नफासत की इंतहा है। बोली ये नफासत की, तवज्जो करी, नफासत की। जिब्राइल अमीन बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह। जी आका। आका सरकार ने पूछा हाँ जिब्राइल की गल है। आदा सोना मैं एक गल ना तुहानू दसा, मैं बात खत्म कर रहा हूं, तवज्जो करी, एक गल ना तुहानू दसा। फरमाया दसो। आदा सोना मैं मशरक भी गया, मगरब भी गया, मशरक भी गया, शुमाल भी गया, अर्श ते भी गया, फर्श ते भी गया। हाय हाय हाय, हुण तैनूं हुस्न दसन लगा सरकार दा। हाय हाय हाय, अर्श ते भी गया,
मशरक भी गया, मगरब भी गया, आदम तो लैके ईसा तक हर नबी कोल गया। हाय हाय हाय, हर नबी कोल गया ते मुड़ भी हाय जिब्राइल ना भी कसम चावे आता जिब्राइल कूड़ मरेंदा है नहीं, पर ओदे दिल नु ठंड नहीं पई, आदा सोना गल ही हो जाइए। हाय 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 सोनिया गल ही हो जाइए, जो कसम खावनी पौंदी है, कसम खानी पैंदी है ते आदा सोना मशरक भी गया, मगरब भी गया, शुमाल भी गया, जनूब भी गया, अर्श ते भी गया, फर्श ते भी गया, पर अल्लाह दी कसम है तेरे घर वर्गा घर नहीं बिठा। हाय 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 हाय, तेरे घर वर्गा घर नहीं बिठा। मोड़ आदा है। अच्छा इथे इथे भी ओ पंजाबी चापा ने ना छाओ ने भरी जा है, इन्हें आने है ना है, तो मोड़ इथे भी नहीं रजिया, इथे भी नहीं रुकिया, मोड़ आदा सोना अल्लाह दी कसम। ओ यार एक बारी जो चाय खा लें, मोड़ अल्लाह दी कसम। हाय 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 मोड़, मैं तो कहना जिब्राइल भी उस वेले मस्त खड़ा हो सी जुल्फां खुलियां देख के। हाय 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 हाय, जिब्राइल भी मस्त अलस्त खड़ा होगा, चमकता रुखसार देख के, अरे चमकता माथा देख के, अरे चमकते होंठ देख के ओ मस्त खड़ा हो सी, ता तो दुई बारी कसम चाही सी। हाय ते कसम चाह के सोना अल्लाह दी कसम है। अच्छा मोड़ सीधी गल च करेंदा, मोड़ आदा है अल्लाह दी कसम है, मशरक भी गया, मगरब भी गया, शुमाल भी गया। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अपनी बात से नहीं कह रहा मैं, तुम्हें अपने ज़ौक़ में बता रहा हूं, ये अलग बात है कि मशरक भी गया, फारिश्ते भी गया, फारिश्ते भी गया, आदम तो ईसा तक हर नबी को गया, पर सोना तेरी अम्मा वर्गी अम्मा ही नहीं दिखी। हाय 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 हाय, तेरी अम्मा वर्गी अम्मा ही नहीं दिखी। मोड़ आदा है सोना जी, आका ने फरमाया की गल है जिब्राइल हुन जांदा नो, आखे हो सी ना, चले गल हदीस दी नहीं है, मैं आदा पे आखे हो सी जिब्राइल हुन जांदा नो, गल कर लईए। आदा नहीं नहीं हाली नहीं रजा। हाय 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 हाली, हाय 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 हाली। उम्मे माबद सरकार जब हिजरत करके आए ना, उम्मे माबद के घर ठहरे हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सरकार ने उम्मे माबद को फरमाया कुछ खाने का है, उन्हें क्या कुछ भी, कोई ने कहा लागर बकरी खड़ी है। आपने फरमाया अगर तुम इजाजत दो तो हम इसका दूध दहो लें, मतलब इसका दूध निकाल लें। उन्हें क्या दूध देंदी होंदी, एडी काबिल होंदी ते अय्यर नाल वग जांदी, रेवड़ से साथ चली जाती। आपने फरमाया तू इजाजत दे ए जाने ते असी जाने, तू इजाजत दे ए जाने ते, इजाजत दे दी। सरकार ने हाथ फेरा, बकरी ने दूध निकाल लिया। उम्मे माबद फरमाती मेरे घर दे सारे बर्तन भर गए। हाय 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 हाय, मेरे घर दे सारे बर्तन भर गए। सरकार ने भी रज के पीता, अबू बकर सिद्दीक ने भी पीता, उम्मे माबद ने भी पीता, सरकार टुर गए। रेवड़ आया वापस, शामी अगले पूछया उम्मे माबद घर तब डंगर कोई नहीं, दूध किदू आया? घर तक डंगर कोई नहीं, दूध किदू आया है? और ये भी मेरे नबी की सुन्नत है, जब शाम को घर जाया करो तो तहकीक किया करो कि घर क्या छोड़ गए थे, क्या आया हुआ है। ये भी मेरे नबी की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है, इस मुआशरे की अशद जरूरत है। अपने घर पे भी ध्यान दो, तवज्जो करो इस मुआशरे पे, हम बर्बाद हो गए। इस बर्बादी ने हमें मुस्तफा से दूर कर दिया है, हमें हुजूर की मोहब्बत से दूर कर दिया है, हमें मसाजिद से दूर कर दिया है, हमें नमाज से दूर कर दिया है, हमें बड़ों का अदब छीन लिया इसने, हमसे माँ की कदर छीन ली इसने, हमसे बाप की कदर छीन ली इसने, हमसे उलमा की कदर छीन ली इसने, शेख की इज्जत छीन ली इसने। अरे खुदा के वास्ते हुजूर के मिलाद का पैगाम ये है लोगों, मुस्तफा की मोहब्बत का पैगाम ये है लोगों, अपनी नस्लों की हिफाजत करो, अपने बच्चों की हिफाजत करो, अपनी बीवी की हिफाजत करो, अपनी माओ बहनों बेटियों को हिफाजत करो और इन्हें मुस्तफा का उसवा सिखाओ। घर से निकलो तो तवज्जो किया करो, घर में आओ तो तवज्जो किया करो। आकर पूछा उम्मे माबद घर में बकरी नहीं थी, डंगर नहीं था, दूध कहां से आ गया? उसने कहा तुझे क्या बताऊं, हाय हाय हाय, तुझे क्या बताऊं, एक आने वाला आया था, हाय हाय, उसने बकरी पे हाथ फेरा, मेरे ते घर दे बर्तन ही थोड़े पै गए। हाय हाय हाय। अब मैंने ना आपको सिर्फ अगली बात बतानी है। उन्होंने कहा अच्छा उम्मे माबद वो कौन था? उम्मे माबद वो आदियो हो, ए तो मैनू ही कोई नहीं पता। हाय हाय हाय, ए था उन्हें क्या उम्मे माबद
तेरी लागर बकरी चो दुध कट गया ना ही पुछ लेंदी हाय 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 तू ओदा ना ही पुछ लेंदी मैं जिब्राइल के पास बात लेके जा रहा हूं जरा तवज्जो सुनी ओदा ना ही पुछ लेंदी ते पता की कहंदे उम्मे बाबत कहने लगी और तुझे क्या बताऊं जब वो बोलता था ना हाय 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 वीर मेरे निशा फरमाई कोई जुल्फां छल्ले हो छल्ले हाय हाय सारा जग सोना है मेरे अरबी तू थल्ले हो थल्ले हैं सरकार ने फरमाया वो अकमल तड़प उठे मेरे अली भी तड़प उठे ना जब यार को देखा तो आदा माँ अजमला का माँ अकमला का किथे मेरे अली हाय 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 किथे मेरे अली आदा सूरत नू मैं जान आखा आदा नहीं 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 छोटी गल कीती हो मेरे अली छोटी गल कीती हो ए सूरत नू मैं जान आखा आदा जान आखा नहीं आदा अच्छा जाने जहान आखा आदा नहीं नहीं छोटी गल कीती है सच आख हाय 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 मेरे अली इथे सच बोल तू तो वेख्या है और लुकावण तो ओ जिन्ना वेख्या नहीं हाय 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 लुकावण ते ओ जिन्ना वेख्या नहीं मेरे लिए तू सच बोल तू तो वेखी बैठा है हाय हाय तू तो वेखी बैठा है आदा मोर सच सुन ले सच आखा ते रब दी में शान आखा जिस शान तू शान सब बढ़िया हाय 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 ए अनफस दा तर्जुमा ही हाँ ए मेरे अली दे मुंह सुन ला अनफस दा तर्जुमा के सच आख बैठा ही मेरे अली भी ते आपने पूछा अच्छा तू पूछ लेंदी आदि ये तुझे क्या बताऊं अरे जब वो बोलता था जब वो चलता था जब वो मुस्कुराता था जब वो मुड़ता था जब वो ठहरता था जब वो बैठता था जब वो बात करता था अरे मुझे उसके रब की कसम मैं तो उसकी जुल्फों के कुंडल में गुम रही मैं तो उसके बोलने में गुम रही मैं तो उसके चलने में गुम रही और मुझे याद ही नहीं रहा कि ना ही पूछ लेंदी हाय 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 मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं ओदा बोलो बोलो ओदा ना ही पूछ लेंदी ते जबरील तेरी कसम चाहता पिया तरी कसम जिब्राइल तीसरी कसम खा रहा है अब मेरी तवज्जो से बात सुनी जिब्राइल हो के हुन मान जा यार हुन तो मस्त खला हो सी हाँ 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 आदा सोना अगे मां वर्गी मां का नहीं आदा सोना जी जिब्राइल बोल की गल है दा सोना अल्लाह दी कसम सरकार फरमाया उसी जिब्राइल के ही लोड़ तेनू कसम खावन दी सीधी गल कर हाय 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 सीधी गल कर आदा मोड़ा दा सोना मशरक भी गया ते सरकार आदे चा यार अगे भी दसिया ही मशरक भी गया मगरब भी गया गल कर फरमाया नहीं नहीं सरकार देख रहे होंगे कि जिब्राइल पे अब कौन सा खुमार तारी हाय 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 जिब्राइल पे अब कौन सा खुमार तारी है एक खुमार इश्क में वो भी आता है जहां शरीयत खत्म हो जाती है जहां शरीयत खत्म हो जाती है सरकार ने फिर मैं पूछा अच्छा जिब्राइल मशरक भी गया मगरब भी गया शुमाल भी गया जनूब भी गया अर्श पे भी गया फर्श पे भी गया आदम से ईसा तक सबके पास गया आदा सोना अल्लाह दी कसम हाय 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 अल्लाह दी कसम जिब्राइल अगा बोल की गल है आदा सोना अल्लाह दी कसम हुन तड़प जाई यार दा ना सुन के आदा सोना अल्लाह दी कसम ना मशरक वेखया ना मगरब वेखया ना शुमाल वेखया ना जनूब वेखया ना अर्श ते वेखया ना फर्श ते वेखया ओ हिको लाल वेखया जेड़ा आमना दा मुहम्मद दा कोई भी नहीं ते फरमाया लोगो लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम ये जो तुम्हारे पास रसूल आया है ना ये नफीस नहीं है नफीस है नहीं है ये मेरी जात का मजहर है मेरी जात का मजहर है और अगर कभी अंदाजा मेरा लगा सको तो इसकी भी कोशिश करना अगर मेरी रबूबियत का अंदाजा लगा सको तो फिर कोशिश करना मुस्तफा की नफासत का अंदाजा लगाने की और अगर मानो कि मेरा अंदाजा कोई नहीं तो अंदाजा मोड़े दा भी कोई नहीं हाय 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 अंदाजा एदा भी कोई नहीं आओ आज की निशस्त में शिरकत करने वालों दावत फिक्र ये है पैगाम ये है ये मिनहाजुल कुरान का तुर्रा इम्तियाज है ये तुर्रा इम्तियाज है मिनहाज का हम कमी है कमी समझते हो ना तुसा तो समझते हो सो कमी
ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾਣੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝਾੜੂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਮੰਜੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢੇਂਦਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਝੋਲੇ ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਜਾ ਵੰਡੇਨੇ हैं। कैसा दौलत नहीं बांटते हम, दौलत नहीं बांटते हम, दौलत नहीं बांटते हम, गुंबद खजरा की खैरात बांटते हैं, हम मुस्तफा की खैरात बांटते हैं। आओ लोगों, पैगाम ये है, नफरतें मिटा दो, नफरतें मिटा दो। अरे हम एक ही मैसेज देते हैं कि जुड़ जाओ मुस्तफा के साथ। इससे आगे कोई इबादत नहीं, इससे आगे कोई रियासत नहीं, इससे मैं चलो ये जुमला कहने लगा हूं जो 50 होता, इससे आगे कोई रबूबियत नहीं, हाय हाय हाय, इससे आगे कोई रब भी उसी का, कुल हुवल्लाहु अहद, सोनिया ओदा रब्बा जेड़ा तेरे आखे मनसी, हाय हाय हाय, जेड़ा तेरे आखे मनसी, ते जेड़ा तेरे आखे ना मन्ने, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। तो आओ दोस्तों, हुजूर से प्यार करो, आका से जुड़ जाओ। हम हुजूर से दूर हो गए, आका की निस्बत से दूर हो गए, हम में नफरतें आ गई, तंगदस्तियां आ गई, धोखे आ गए, फराड आ गए, लालच आ गया। आओ हुजूर की जात पे जश्न मनाओ, हुजूर पे दरूदो सलाम पढ़ो, नमाज पंजगाना अदा करो, बुजुर्गों का अदब करो, बड़ों की इज्जत करो, माँ बहन बेटी की कदर करो। मेरे मुस्तफ़ा के मिलाद का सदका अपनी बहनों को दरवाजे से ना रोका करो। जुल्म हो गया है, हमने बहन को दरवाजे से रोक दिया, वो कहता है ये मेरे से हिस्सा मांगती है। आए मुस्तफ़ा आए थे तो दरवाजे खोले थे बहनों के लिए, मेरे सरकार ने तो बहनों के लिए दरवाजे हमने बंद कर दिए और जलूस निकाले फिर रहे हैं। बहन का दरवाजा बंद करके जलूस निकालने की कोई जरूरत नहीं। अरे तू ना भी जलूस निकाले और किसी को इसलिए मुस्कुरा के मिला करके यार ने कहा था, हाय हाय, हबीब ने कहा था, अल्लाह राजी हो जाएगा। मिलाद का सदका आज तोहफा दो सरकार को, और वो तोहफा ये है, अगर किसी से नाराज हो ना, जाकर उसको सरकार की खातिर माफ कर दो, माफ कर दो, कहो इंशाल्लाह, मट्ठी है इंशाल्लाह, कहो इंशाल्लाह। नमाज पंजगाना अदा करो, मोहब्बतें फैलाओ, इज्जतें बढ़ाओ, कदर करो एक दूसरे की, हुजूर से हर शय से बढ़ के प्यार करो। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, दारैन की नेमतों से नवाजे। बोला भटका कोई जुमला आपकी तबीयत पे नागवार गुजरा हो, मुसाफिर करबला का सदका माफ कीजिएगा। वमा अलैहा।